Yes, good afternoon everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your social science teacher, and today we are going to read history portion, chapter first, nationalism in Europe. Before going further, let me recall the previous topics which we have discussed. Recapitulation time. Yesterday and day before yesterday, or 3 days before yesterday's, we have discussed about Frederick Suro. Okay, it's painting, then French Revolution, then we have discussed, let me check thoda mujhe, nation state we have discussed, Jacobin we have discussed, and yesterday we have discussed Napoleon, which kind of reforms done by Napoleon in France and then other countries of Europe. Now open your book at page number 7, last paragraph. However, in the areas. Got? Show me thumbs up if you get this paragraph. Okay, thank you Harjot, Ishupreet, Arman, Abhijit, Kashish, Arshia, Abhijot, Sehaj, Palak, Surenderpreet. Beta Surinder, camera on. चलो, हाँ जी, ईशुप्रीत अनम्यूट करो बेटा. Good afternoon, ma'am. From where to read? From page number 7, second paragraph, however. ठीक है. अच्छा, बट पढ़ने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो. इस पे पेन, बुक पे लिखना है, कॉपी पे नहीं, बुक पे लिखो. What was the reaction of the local people? कॉपी पे नहीं लिखना, यही लिखना है. अरमान, वीडियो ऑन. What was the reaction of the local people to French rule? To the French rule. अब इसमें ना देखो, इस क्वेश्चन में नेपोलियन वाली बात भी आ जाएगी कि नेपोलियन ने जो करा उससे सब खुश थे कि नहीं खुश थे. फ्रेंच रूल जैसा चल रहा था उससे सब खुश थे कि नहीं खुश थे. ठीक है. नाउ द आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट टू दिस क्वेश्चन ओनली, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल टू द प्रपोजल, what was the reaction to the people to this kind of law? Every time the answer will be mixed, क्योंकि reaction पूछा ना तो reaction तो mixed ही होगा. Every time when there is any kind of law, जो reaction है वो mixed ही होता है. People are happy, people are sad also. Okay, like अब किसान बिल पास हुआ, some of the people are happy but others are very upset. तो रिएक्शन मिक्स्ड. इससे पहले बड़ा स्टेप हुआ था 370 हटा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 हटाया. 370 क्या था? वरुण अनम्यूट करिए जरा. 370 क्या था? व्हाट वाज आर्टिकल 370? सिविक्स में भी ये पढ़ाना, तो लेट मी चेक. वरुण अनम्यूट करो बेटा. वरुण भट्टी. Varnit, unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Varnit, what was 370? I don't know. इतना हो हल्ला मचा पूरे इंडिया में एंड यू डोंट नो. चलो और किसी से पूछते हैं. सहजप्रीत अनम्यूट करना. सहजप्रीत कौर टेंडी. दिस इज नॉट गुड ना. अभिजोत अनम्यूट कर बेटा. गुड आफ्टरनून मैम. अभिजोत 370 क्या था? आर्टिकल 370 मैम विच वन? जम्मू कश्मीर वाला या दूसरा? जम्मू कश्मीर वाला. और है ही नहीं कोई 370 की आर्टिकल है इंडिया में. मैम यस
Ma'am, that in Jammu and Kashmir there was different types of rules expect from India. That there was different in internet connectivity, different types of regions and etc. Now Now what? it was abolished. Now it is abolished. And now what happened? Otherwise, so you are saying correctly, you are saying that different kind of constitution, different kind of people, different kind of rules, different kind of laws, different kind of ministers. But now we have deleted, Mr. Modi deleted 370. Now what is the change in Jammu Kashmir after deleting 370 article? Ma'am, after deleting the Jammu Kashmir and Ladakh become the union territory, and it and ma'am, this much I only know. Okay, कोई बात नहीं, चलो अरमान खिदरी बेटा अनम्यूट करो। वीडियो ऑफ करने को नहीं बोला, अनम्यूट करने को बोला अरमान। अर्शिया अनम्यूट करो। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूँ, आई टेल यू। बेटा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 370? रिजल्ट क्या हुआ? 370 हटा दिया। थोड़ा भी जोत ने बताया कि अर्लियर जम्मू कश्मीर वाज हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ स्टेटस, स्पेशल स्टेट का उसको स्टेटस मिलता था, तो नाउ इट इज डिलीटेड। नाउ व्हाट हैपेंड? थोड़ा सा उसने ये भी बता दिया अभी जोत ने कि अब तो ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और क्या चेंज आए इसमें 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर में? Ma'am, I have no idea about it. Okay. अच्छा, raise your hand those who have any idea about 370. आज हम यूरोप में, मैंने आपको घुमाना था, फ्रांस घुमाना था, आप लोग इंडिया बैठे हो, चलो कोई बात नहीं। raise your hand those who know little about 370. आज कहीं और ही ट्रैक पे चले गए हैं, नहीं पता? चलो, वेरी स्ट्रेंज कि एक भी बच्चे को नहीं पता कि 370 क्या था। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। Yes, according to Article 370, special status of special state was given to Jammu and Kashmir, but now it is deleted. Now Jammu Kashmir, Ladakh became union territory, and now Jammu Kashmir is not having any kind of special status, state of special state. ओके, नाउ जम्मू कश्मीर में भी हम अपनी लैंड खरीद सकते हैं, हमारे मोबाइल वहां चलते हैं, हम अपनी प्रॉपर्टी वहां खरीद सकते हैं। वहां का प्राइम मिनिस्टर अब मिस्टर मोदी जी ही हैं, अर्लियर ऐसा नहीं था। अब हम वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, और दे विल फॉलो द सेम कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑल इंडियन पीपल आर फॉलोइंग। otherwise they were having different constitution, they were having different prime minister. Can you imagine? कश्मीर में जाके अभी भी लगता है, कश्मीर में जाते हैं श्रीनगर में तो लगता है जैसे पाकिस्तान में किसी और मुल्क में आ गए हैं, बट ऐसा है नहीं है। अब 370 हट गया है और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर का ही रूल चलेगा, मिस्टर मोदी होंगे वहां पर प्राइम मिनिस्टर, जैसे ऑल ओवर इंडिया में है। एनी चेंजेस दैट इज हैपन इन इंडिया वो वहां पर भी होंगे, ठीक है। वहां पर अब उसको जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट नहीं कहते हैं, पहले उसको स्पेशल स्टेट कहते थे। ये याद रखना, बिकॉज सिविक्स का चैप्टर 2 में आप ये चीज लिखोगे, ठीक है। चलो वापिस आ जाओ फ्रांस पे, जम्मू कश्मीर घूम लिया, इंडिया चले गए। हाँ जी, फ्रांस की बात कर रहे थे। तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल टू द फ्रेंच रूल? अब देखो, रिएक्शन तो मैंने आपको बोला कि मिक्स्ड होता है। अच्छा, अब 370 की बात हुई, तभी भी कुछ लोग पता खुश नहीं थे, बड़ा हो हल्ला हुआ था, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। 2 महीने बाद जाके जम्मू के स्कूल कॉलेज खुले हैं, इतना वहां पे डिसऑर्डर और कंफ्यूजन हो गई थी। कोई भी जब रूल पास होता है ना तो उसका रिएक्शन मिक्स्ड ही होता है। अब जो किसान बिल पास हुआ, बहुत से लोग सेटिस्फाइड है, बट बहुत से लोग हैं जो डिससेटिस्फाइड है और आज भी वहां दिल्ली जाकर बैठे हैं, मुझे लगता है मोर देन 100 डेज हो गए, तो उनको ये कानून पसंद नहीं है। तो reaction of the people always mixed. In the same sense, 3 years before demonetization हुआ था, याद है? Demonetization क्या होता है? अरमान अनम्यूट करो, ये तो पता ही होगा। अरमान अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा, अरमान को कुछ कह दो तो या तो वो वीडियो बंद कर देगा या फिर मीटिंग लीव करेगा। पलक unmute yourself. Ma'am, I don't know. Demonetization नहीं पता?
मैम सुना तो है पर मीनिंग नहीं पता। अरे इसका तो हमारे इंडिया में इतना हो हल्ला पड़ा था, तो तभी भी नहीं आपको पता डिमोनेटाइजेशन। वरुण भट्टी, अनम्यूट योरसेल्फ। वरुण भट्टी, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा गुड डिमोनेटाइजेशन, आफ्टरनून मैम। व्हाट वाज डिमोनेटाइजेशन? मैम नहीं पता। चलो कशिश। मैम अब हमें आपने बताया था कि वो मेटल कॉइन्स यूज होते थे, अब पहले गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे, तो फिर वो पीपल मेल्ट करके उसको मतलब मार्केट में सोल्ड करते थे और इसलिए अब मेटल कॉइन्स हो गए हैं। मैंने ये तो बोला मैंने ऐसा बोला ही नहीं मैम आपने बोला था। नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला। हाँ, ऐसा जरूर मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि करेंसी नेपोलियन ने चेंज करी थी, तो करेंसी वो उसने एक ही तरह की कॉमन नेशनल करेंसी रखी थी, ठीक है। और या फिर मैंने आपको इसके साथ एग्जांपल दे दी थी कि क्योंकि करेंसी की वजह से कंफ्यूजन होती थी, जैसे हमारे इंडिया में सिर्फ 2 तरह की करेंसी है, पेपर नोट और मेटल कॉइन्स। बस मैंने इतना ही बताया था, मैंने और कुछ नहीं बताया था कि उसको मेल्ट वेल्ट कितना, ये तो मुझे भी नहीं पता अभी तक। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इट हैपेंस। अच्छा, उसके बाद फिर हर्षिता तू बताएगी, अनम्यूट कर दो जरा। गुड आफ्टरनून मैम। डिमोनेटाइजेशन पता? मैम नहीं। मेरी ग्रेड 10 को डिमोनेटाइजेशन नहीं पता, तो सुनो फिर मैं बताती हूँ। डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, जब करेंसी चेंज कर दी, जब नोट बदले मिस्टर मोदी ने 2 साल पहले, बड़ा हो हल्ला हुआ जी 500 के नोट बंद, है ना? डिड यू एवर लिसन दैट स्पीच? प्यारे भाई और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 के नोट बंद हो जाएंगे, तो वो डिमोनेटाइजेशन था। 2000 रुपीज नोट चला, अभी सारे नए नोट चले, ब्लैक मनी सारी बाहर आ गई तरीके से। 2 महीने तक बैंकों में जाके सबने नोट चेंज करवाए, बहुत सी दिक्कत भी आई लोगों को, किसी के घर में मैरिज थी, किसी के घर में कोई प्रोग्राम था, तो करेंसी बदलने को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, याद रखना। अब ये बड़ी ही कॉमन बात है, ये तो छोटे छोटे बच्चों को पता है, पता नहीं मेरी ग्रेड 10 को क्यों नहीं पता थी। चलो अब वापस आ जाए फ्रांस में, इंडिया से फिर से निकल कर हम आज घूमने जा रहे हैं, कभी फ्रांस और कभी इंडिया और कभी यूरोप, है ना? चलो अर्शिया, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। पढ़ना शुरू करो। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्क्यूर, However, in Dunkirk, the reactions of the local populations to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty, but the initial enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorships, forced conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed to outweigh the advantages of administrative changes. Yes, this was the reaction of the people, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कुछ लोगों ने तो फ्रेंच आर्मी को हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी बोला और उनका वेलकम किया। पोलैंड और स्विट्जरलैंड ने बोला फ्रेंच पीपल को हमारे यहाँ आओ, अटैक करो, और जैसे आपको आज़ादी मिली है ना 1789 में मिल गई आपको, तो हमें भी आज़ादी दिलवाओ। बट कुछ लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं था। एवरी टाइम द रिएक्शन ऑफ द पीपल टू एनी प्रपोजल इज मिक्स्ड, वो तो पॉजिटिव था बट नेगेटिव भी थी। वो लोग जो मानते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो सही नहीं चलेंगे, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो पहले था वही सिस्टम सही था। तीसरा था कि टैक्सेशन, सेंसरशिप और कंस्क्रिप्शन जो था फ्रेंच आर्मीज में, वो रेस्ट ऑफ यूरोप में ऐसा नहीं था, और ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि फ्रांस वाले चेंजेस बाकी दुनिया में करने से फ्रांस का ही दबदबा शामिल हो जाए, तो लोगों का रिएक्शन मिक्स था।
Now we will mark these 3 points, and we are not going to write this question on copy. Directly we will learn from book only. Are you ready to mark the answer? Show me thumbs up. Yes. चलो ठीक है बेटा. हाँ जी, question you have written. What was the reaction of the people to the French rule? चलो हाँ जी, answer बेटा. From the very beginning, however, in the areas conquered, the reaction of the local population to the French rule was mixed. This line will be intro. One line intro. Now, first point exactly. Next line. Initially, up to liberty. और उसकी हेडिंग बनाओ पॉजिटिव रिएक्शन. खुद ही बना लो, बुक में नहीं लिखा, खुद ही अपने हाथ से लिख लो. पॉजिटिव रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट, बट अप टू फ्रीडम. And heading will be negative reaction. Next, increased taxation up to change. And heading will be mixed reaction. Abhijit, video on. Okay, so we will not write this question in copy. We will learn from here only. Show me thumbs up if this question clear. Excuse me, ma'am. Palak beta. Ma'am, it is up to administrative changes. Last administrative. Chalo. Now done. Thank you very much for responding. Next page. The making of nationalism in Europe. चलो जी, अब यूरोप में आ जाए. फ्रांस से हम लोग निकल चुके हैं. Can you see this page with the heading? चलो. Thank you very much, Ishupreet. Thank you so much. Now हम यूरोप में चलेंगे. फ्रांस हमने छोड़ दिया है. हाँ जी, the making of nationalism in Europe. आपके लिए एक और छोटी सी गुड न्यूज है. We will learn this question from book only. आज रिटर्न काम कुछ भी नहीं है. ठीक है, आज सिर्फ यहीं से पढ़ेंगे और आप इवनिंग में ये दोनों क्वेश्चन लर्न करोगे. यू विल नॉट राइट एनी क्वेश्चन इन द कॉपी. चलो हाँ जी, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. अब यहाँ पर अपने हाथ से पहले क्वेश्चन लिखो. इस यहीं के ऊपर, ये देखो बुक के ऊपर, ये भी लिखा ना, मैंने भी लिखा ना. कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? आप भी लिखो. बुक के ऊपर ही लिखना है, कॉपी पे नहीं लिखना. व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ यूरोप What was the political condition of Europe in early 18th century? Mid 18th century लिखो, early मत लिखो. Mid 18th century. Mid 18th century. Done बेटा? चलो अच्छा, एक और चीज है. अभी तक मैंने आपको जो नहीं कहा, अब कहने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा. इसमें समझाने वाली बात कम है, इसमें लर्निंग बात ज्यादा है. ठीक है, कह लो कि रट्टा लगा लो, चाहे इसको अच्छे से लर्न कर लो. बाय हार्ट आपको इसको लर्न करना है. इसमें समझाने वाली बात कम है. फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि सारी की सारी पॉलिटिकल कंडीशन यूरोप में कैसी थी. मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि यूरोप की कंडीशन अच्छी नहीं थी. ठीक है, सेंट्रल में किसी और का रूल था, लेफ्ट में किसी और का, राइट में किसी और का रूल था. अलग अलग एरियाज में अलग अलग लीडर बने हुए थे. ठीक है, चलो आराधना, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम, स्टार्ट रीडिंग बेटा. द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पॉलिटिकल कंडीशन. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no national states as we know them today.
What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and can- cantons whose rules had their auto, autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived. देखो मैंने पहले कहा थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है और आप इसको और डिफिकल्ट बना रहे हो। आराम से पढ़ो एक एक लाइन, ठीक है? चलो, अच्छा, आपने पढ़ा कि what we know about Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms. पूरा का पूरा जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड डिवाइडेड था किसमें? किसमें? डचीज में, कैंटोनमेंट समझते हो? कैंट एरिया, मिलिट्री एरिया, कैंटोन बोलते हैं उसको। whose rulers had their autonomous territory. autonomous का मीनिंग लिखो बेटा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एरिया, ठीक है? तो ऐसा था पहला स्टेप, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा। अभी वाइंड अप मत करना, अभी पॉइंट मत बनाने लगना, पहले सुन लो ध्यान से, ठीक है? तो डचीज का, कैंटोनमेंट का अपने अपने रूलर थे, अपना अपना इंडिपेंडेंट एरिया था। हाँ जी, अर्शिया आगे पढ़ो बेटा, अर्शिया पढ़ो। Ma'am, from Eastern and Central Europe. Yes, Eastern and Central Europe. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. Yes. They did not see themselves. एक लाइन पढ़ के रुक जाया करो, ठीक है? अच्छा, एक बात, आप लोग ना मोनार्ची क्यों पढ़ते हो इसको? ये मोनार्की है, क बोलना है, च नहीं बोलना, ठीक है? दूसरी बात अर्शिया ने पढ़ी, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की, अपने अपने किंग और क्वीन थे यहाँ पर, और यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे। ये दूसरी बात आपने पढ़ी, यूरोप में क्या था। चलो थर्ड, हर्षिता अनम्यूट योरसेल्फ, आगे पढ़ो। अभी पॉइंट नहीं बनाने हैं, मैं वो बाद में बनाऊंगी, पहले सुन लो। हाँ जी हर्षिता। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. वो अपने आप को एक नहीं समझते थे। अब आपको पता है शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन कल्चर, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी आपको ये क्या था। शेयरिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड कल्चर। कॉमन आइडेंटिटी वो कुछ जो कॉमन चीजें थी, जैसे कि फ्लैग, एलिगरी, एम्बलेम, एंथम, वो चीजें जो सबकी कॉमन थी। फ्रांस में हम करके आए हैं, पर बाकी यूरोप में ऐसा नहीं था। लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं समझते थे। हाँ जी, फर्दर बेटा हर्षिता। The Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and peoples. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria, and the Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German-speaking. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. In Hungary. Wait, Harshita. Now she has read कि Habsburg Empire ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर था। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए सारा का सारा पैचवर्क था और रीजन और पीपल डिफरेंट थे। इट इंक्लूडिंग एल्पाइन रीजन था, टायरल था, ऑस्ट्रिया था और सडरलैंड और बोहेमिया, ये बड़े सारे एरिया इसके अंडर आते थे। प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग था। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस। दो बड़ी बड़ी प्रोविंसेस थी इटली की, लंबार्डी एंड वेनेशिया। इसको वेनेटिया नहीं पढ़ना, वेनेशिया। लंबार्डी और वेनेशिया इटली की प्रोविंसेस थी, वो भी इसी में ही पड़ती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा कशिश पढ़ना शुरू करो बेटा। नेक्स्ट इसके आगे। मैम फ्रॉम इन हंगरी। In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialects in Galicia. The
Aristocracy spoke Polish. Besides these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Romanians and Slovaks to the north, Solveness in Carnilo, Croats to the south, and the Romans to the east in the Transylvania. चलो वेट बेटा वेट, अब मुझे इतना समझाने दो। चीजों को और कॉम्प्लिकेट मत करो, आराम से ही पढ़ो इसको, धीरे से ही, ठीक है। अब हंगरी में क्या था, कशिश ने पढ़ा। हंगरी में हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar। magyar का मीनिंग लिखो बेटा, magyar इज अ लैंग्वेज, इज अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, magyar इज अ लैंग्वेज। तो हाफ ऑफ द पीपल स्पोक magyar लैंग्वेज, जबकि बाकी अदर पीपल स्पीक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब लैंग्वेज, कोई magyar बोलता था, कोई फ्रेंच बोलता था, कोई पॉलिश लैंग्वेज बोलता था। सो डिफरेंट पीपल स्पीक डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। दे आल्सो लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। मास ऑफ द सब्जेक्ट पीसेंट पीपल, बोहेमिया एंड सॉल्वाक्स इन द नॉर्थ, ये लोगों की ट्राइब्स के नाम है। बोहेमियाज और सॉल्वाक्स ये नॉर्थ में रहते थे, सॉल्वीन्स कार्नोला में रहते थे, क्रोट्स साउथ में रहते थे, रोमन्स ईस्ट में रहते थे, ट्रांसिल्वानिया में। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको याद ही करना पड़ेगा ये सारा कुछ, ठीक है। सच डिफरेंस आप पढ़ो बेटा, इशुप्रीत आप पढ़ो, सच से सच। Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie bending these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. हाँ, ये सारे के सारे ग्रुप्स अपने आप में सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं ऑफर करते थे, सारे पॉलिटिकली इकट्ठे नहीं थे। आपको पता, जब लोग इकट्ठे नहीं ना होते, जुड़ते नहीं है, तो देश हमेशा बर्बाद होता है। जब लोग एक दूसरे का कल्चर अडॉप्ट नहीं करते, एक दूसरे की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो ओनली बाइंडिंग डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पायर। सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी कि वो लोग राजा को मानते थे, बस वो कहते थे कि राजा बिल्कुल सही है, वो राजा को मानते थे और किसी चीज को वो नहीं मानते, ठीक है। अब हम लोग हैं, हम लोग तो अपने कल्चर की, अपने फूड की, अपनी लैंग्वेज की सारी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। अब हमें साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है साउथ इंडियन फूड, वो इडली डोसा सांभर मुझे बहुत पसंद है। मुझे कश्मीरी ड्रेस बहुत पसंद है, श्रीनगर घूमना बहुत पसंद है। ऑल द पीपल लाइक पंजाब, जब वो यहाँ आते हैं दरबार साहब गोल्डन टेम्पल जरूर जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड शेयर्ड कल्चर। We like the jewelry of Kashmiri people. We like the dress of Haryanvi people. They like Punjabi food. So this is called shared culture. कभी कभी हमें वो सब खाना, वो सब पहनना अच्छा लगता है, उनको पंजाब आना अच्छा लगता है। This is called shared culture. We respect each other's culture. हम यहाँ किसी राजा रानी को नहीं मानते, बट यूरोप में अभी आप सब ने मिलजुल के पढ़ दिया, कहीं पर गलेशिया में कोई, ट्रांसिल्वानिया में कोई, वो लोग शेयरिंग कल्चर जानते ही नहीं थे। सो दैट्स व्हाई द पॉलिटिकल कंडीशन वाज वेरी अपसेट इन यूरोप। वो सिर्फ एम्परर को मानते थे, किंग को मानते थे। थोड़ा सा आज डिफिकल्ट लगेगा, याद ये करना पड़ेगा क्वेश्चन, तभी ये कॉपी पे नहीं लिख पा रही हूँ मैं। नाउ वाइंड अप करो, पांचों के पांचों पॉइंट बेटा, टेक अ पेन इन योर हैंड। Now we people are going to wind up the question. Condition of Europe. 5 points. Take a pen in your hand. हाँ जी बेटा। हाँ जी। This we have to write in notebook or not? No, we will not. Today we are not giving any kind of written homework. ठीक है, आज सिर्फ आप लर्न करोगे। पॉइंट्स दे रही हूँ मैं आपको इनके। हाँ जी बेटा, टेक अ पेन और पेंसिल इन योर हैंड। बेटा फर्स्ट पॉइंट,
What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies, cantons, whose rulers their autonomous territories. This is number 1. And heading will be duchies and cantons. Duchies and cantons. हाँ जी, second. Ma'am? हाँ जी बेटा, हाँ जी. Ma'am, we have to write what do we know also. लिख दो बेशक, कोई बात नहीं. What we know, कोई बात नहीं. ठीक है, आगे चलो. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. वैसे ना आप यहाँ से पॉइंट शुरू करो. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप. आपने जो पहले मार्क करा ना व्हाट वी नो वाला, बेटा उसको इंट्रो बनाओ. उसको इंट्रो बनाओ. वो फर्स्ट पॉइंट सूट नहीं कर रहा, सेंस नहीं बन रही है. उसको इंट्रो बनाओ. नाउ राइट फर्स्ट पॉइंट ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अप टू ग्रुप्स तक बनाओ. फर्स्ट पॉइंट. And heading will be Eastern and Central Europe. Okay. Now second. Ma'am. Yes, beta. Ma'am, can you repeat? हाँ जी बेटा. First line will be introduction, territories तक. Then first point बोल रही हूँ मैं हर्षिता. Eastern और Central Europe से लेकर groups तक, ethnic groups तक. This will be first point. Now second point, the Habsburg Empire up to peoples. And heading will be Habsburg Empire. ये एक empire का नाम है बेटा, जैसे बॉर्बन स्टेट्स होती थी ऐसे ही Habsburg Empire है. Next point, it included Alpine region and Tyrol, Austria and Sudetenland as well as Bohemia, where the aristocracy were predominantly German speaking. It also included Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. And this will be your third point. And heading will be Lombardy and Venetia. Next. In Hungary, half of the population spoke Magyar, while others spoke different kind of dialects. This will be fourth point. And heading will be in Hungary. What was the condition in Hungary? Next, in Galicia, the aristocracy spoke Polish. Beside these three dominant groups, there also lived within the boundaries of empire, and mass of the subject peasant, Bohemia, Slovaks to the north and Slavs to the Kornila, Croats to the south and Romans to the east, Transylvania. Transylvania tak mark kar lo, and this will be your fifth point. And heading will be Galicia. In Galicia. Ma'am? Yes, beta. Ma'am, what is the heading of first point? Eastern and Central Europe. Thank you, ma'am. ट्रांसिल्वानिया तक मार्क कर लिया, ये आपका फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा. और हेडिंग आएगी गलीशिया. इन गलीशिया. Excuse me, ma'am. आशिया. Ma'am, heading of second point. सेकेंड पॉइंट की हेडिंग हैब्सबर्ग एम्पायर. और मैम वो इंट्रोडक्शन की तो हेडिंग नहीं लिखेंगे ना हम? नो 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 नो, इंट्रोडक्शन की कभी हेडिंग नहीं होती है. थैंक यू मैम. लास्ट कंक्लूजन में आ जाओ. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. This will be conclusion. Done 5 points. चलो बेटा. Today no written homework. हाँ जी बेटा, हाँ जी मैम. हम लास्ट में कंक्लूजन डाल के लिखना है ये पॉइंट. हाँ जी, चाहे कंक्लूजन लिख दो हेडिंग, चाहे ना लिखो, सेपरेट एक पैराग्राफ बनाओ. ठीक है, चलो. शो मी thumbs up if 5 points done. No doubt. Okay, thank you very much Abhijot, Ishupreet, Harjot, Aradhana, Arshia, Palak. Thank you very much. Harshita, Varun and Kashish. Thank you Varnit. Now start learning these 2 questions and today no written homework. Okay. Chalo. Thank you very much. Now I am going to end the meeting.
and tomorrow we will meet again with a new topic. Bye, beta. Bye. Bye.